Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study the Runge-Kutta method of first order, second order, third order and fourth order. What is the Runge-Kutta method for first order? So we know that in Euler's method, or we can say Euler method gives the formula. This is the y1 is equal to y0 plus this is the step size into the value of the function, और we can say जो हमारे पास differential equation होगी, and this is equal to, we can also write it as y0 plus h into this is basically the y dash at 0. So this is the first differential, or we can say first approximation. So expanding by Taylor series, what we will get, we get y1 is equal to y times x0 plus h, and this is equal to y0 plus then h into y dash at 0, then plus it is h square by 2 factorial into y double dash at 0 plus so on. So it follows that Euler's method agrees with the Taylor series solution up to the terms in H. So Runge-Kutta method of first order is basically equal to the Euler's method. Similarly, Runge-Kutta method of second order, the formula is given by y1 is equal to y0 plus 1 by 2 times k1 plus k2. So here k1 is h into f of x0 y0, and k2 is h times f of x0 plus h comma y0 plus k. So Runge-Kutta method of second order is basically the modified Euler's method. Similarly, the Runge-Kutta method of third order, basically this method agrees with the Taylor series solution up to the terms in h cube. So as such as this method is of third order, as such Runge-Kutta method is the Runge-Kutta method of third order. So we can say this is the formula, that is y1 is equal to y0 plus 1 by 3 factorial, that is, or we can say 1 by 6 into k1 plus 4 times k2 plus k3. So where k1 is equal to दिस टर्म, सो k1 हमारे पास ये टर्म होगी, k2 हमारे पास ये टर्म है और k3 हमारे पास ये वाली टर्म है. सो ये आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड, ये जो k1 k2 k3 और ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है. जब भी आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो वेयर k डैश इज इक्वल टू k3 एंड विच इज इक्वल टू h f देन h into function that is f of x0 plus h comma y0 plus k1. So note RK method represents a family of one-step method to solve the initial value problem. So it achieves the accuracy of Taylor series method without requiring to compute higher order derivative. So इसमें क्या होता है, हम सिर्फ 3 ऑर्डर तक ही लेके चलेंगे. जैसे इस मेथड में हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यूज फाइंड करने की नीड नहीं पड़ती है. सो नेक्स्ट इज द Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर. सो ये आपका पास फॉर्मूला है. यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला है. वर्किंग रूल में हमें क्या करना है, इसमें हमें ये जो m1 m2 m3 m4 है ये पहले फाइंड करने हैं, और उनके लिए ये हमारे पास फॉर्मूलाज है. दिस इज द Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला. हम या तो ये भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल m1 और m2 m3 m4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें एक और तरीका है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा और उसके हमारे पास जो कंडीशन दी होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस k1 पहले फाइंड करेंगे, देन k2 फाइंड करेंगे, k3 k4, ये दोनों सेम ही है. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट लिखने का तरीका अलग है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम है. फाइनली हमें क्या करना है, वो वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करनी इस फाइनल फार्मूला में, दैट इज k इज इक्वल टू 1 by 6 इंटू k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 2 टाइम्स k3 प्लस k4 विच गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर. So first example is using Runge-Kutta method of fourth order solve this equation. ये हमारे पास differential equation दी है with initial condition दी है और value दी है कहाँ पे, x की value is equal to 0.2. So इसको solve करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास function क्या given है, हमारे पास function f of x y जो दिया है that is equal to y square minus x square divided by y square plus x square. और हमें find क्या करना है, to find करना है हमें करना है टू फाइंड जो करना है दैट इज इक्वल टू फाइंड हमें करना है y एट 0.2 पे. ठीक है, मीन्स x की वैल्यू कितनी है, 0.2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है. ऑलरेडी हमारे पास x0 कितना गिवन है, x0 इज इक्वल टू 0 और y0 कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1.
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एच साइज़ कितना लिया है हमारे पास, जो एच साइज़ है हम यहाँ पे 0.2 लेके भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि हेयर एच इज़ इक्वल टू 0.2। सो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास होता है रुंगे-कुट्टा का, दैट इज़ 1/6 times k1, then it is 2 times k2, then it is 3 times k3 plus k4। सो अब हम जो k1 k2 k3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो k1 का फॉर्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इसी तरीके से k2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई नॉट प्लस k1/2। सिमिलरली k3 की वैल्यू होती है h इंटू एफ then x naught plus h/2 comma y naught plus k2/2। Similarly next term will be k4 and this is equal to hf into x naught plus h and comma y naught plus k3। सो अब हमने इसी में क्या करनी है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम सिंपल लिख देते हैं k1 इज इक्वल टू h कितना, स्टेप साइज इज 0.2 और फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है हमने, x नॉट और y नॉट। x नॉट है हमारे पास 0, x नॉट इज बेसिकली 0 एंड वाई नॉट हमारे पास कितना है, और एक्स 0 हो गया और वाई कितना है हमारे पास 1 है, वाई नॉट है हमारे पास 1। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.2 और फंक्शन में हमें वैल्यू पुट करनी, मीन्स जहाँ पे वाई लिखा हुआ है क्वेश्चन में वाई है वहाँ पे वाई नॉट लेना है, एक्स की जगह पे एक्स नॉट और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 1 का स्क्वायर, इट विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इधर से वैल्यू आ जाएगी 0.200। सो ये हमारे पास एक फर्स्ट आ गया k1 का वैल्यू। सिमिलरली हम k2 की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे स्टेप साइज दैट इज 0.2, उसके बाद आएगा फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे आएगी। अब जो न्यू टर्म दैट विल बी 0. हमारे पास अगला टर्म जो होगा दैट विल बी 0.1 एंड 1.1। ओके, सो जो ये इसमें मैंने ये डायरेक्टली लिखा है 0.1 एंड 1.1, वो कहाँ से हमारे पास आएगा, जब हम पहले इसमें x नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और h की वैल्यू और उसको डिवाइड करेंगे इसको 2 से। सिमिलरली y नॉट की वैल्यू देन प्लस k1 आ गया जो भी हमने प्रीसीडिंग वैल्यू निकाली और उसको वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो हमारे पास बन जाएगा 0.1 और 1.1। फिर अगेन हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बिकम ये y का आएगा 1.1 का होल स्क्वायर देन माइनस 0. ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा, then it will become again y square that is 1.1 का स्क्वायर देन प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.9672। सिमिलरली हम k3 की वैल्यू निकालेंगे सेम प्रोसीजर से, ये हो जाएगा 0.2 इंटू एफ ऑफ अगेन जो हमारे पास टर्म बन जाएगी 0.1 एंड 1.09836 और सेम जब हम फंक्शन में उसकी मेन जो हमारे पास दिया हुआ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1967 एंड बाई रिपीटिंग सेम प्रोसीजर हम k4 पे की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.2 इंटू जो वैल्यू आएगी जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है फंक्शन में दैट इज 0.2 एंड 1.1967 और आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1891। सो ये हमारे पास k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू आई तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स k1 हो गया हमारे पास 0.2 then it will be k2 2 times k2 that will be 0.19 so this is basically just a second, this is 0 point, so this is 0.19672, so 0.19672 then plus 2 times k3 that is 0.1967 and then it is 3 times so either there is a mistake, this is basically 2 times k3, so it will become 2 times k3 then plus k4। so k4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सो k4 कितना हमने निकाला 0.1891। सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.19599। सो हेंस वी कैन से दैट y at 0.2 this is equal to y naught plus k and which is equal to 1.9
1.196। तो मीन्स वाई नॉट जो होगा वो जो हमारे पास टर्म है 1, और उसको ये वाली टर्म हमने क्या करनी है, ऐड करनी, जो के की वैल्यू है वो दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, रुंगे कुट्टा मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने। सेम नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर अप्लाई करना है, और ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, और ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो सेम हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे, हमारे पास एक्स नॉट किसके इक्वल है, यहाँ पे एक्स नॉट 0 है, वाई नॉट किसके इक्वल है, ये वो 1 के इक्वल है, स्टेप साइज एच कितना हम ले रहे हैं, 0.2 ले रहे हैं, और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बिकम 1। ओके, सो यहाँ से वो क्यों 1 हुआ, क्योंकि एक्स वो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई, दैट विल बिकम एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, और एक्स नॉट 0 है और वाई नॉट 1 है, इसलिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। सो सिमिलरली हमें रुंगा कुट्टा के लिए हमें सबसे पहले k1 फाइंड करना है, दैट इज h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं h हो गया 0.2, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे दैट इज 1, तो यहाँ से आएगा 0.22000। सिमिलरली हमें अगर निकालना होगा k2 फंक्शन की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई नॉट प्लस k1/2। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल हो गया कि स्टेप साइज इज 0.2 और फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, तो मीन्स पहले एक्स नॉट, अगर मैं यहाँ पे ये क्या मतलब हुआ, दिस बिकम्स एफ ऑफ, ऐसे लिखते हैं, सो इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स नॉट कितना था, 0 था, और वो हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस एच कितना था हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा वाई नॉट हमारे पास 1 था, k1 हमारे पास कितना है 0.2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 0.2 इंटू फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे 0.1 एंड 1.1 पे। सो जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज तो ये हमारे पास आएगा 0.2400। सो इसी तरीके से हमें k3 भी फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई नॉट प्लस k2/2, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो सेम प्रोसीजर से हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.2 इंटू फंक्शन की वैल्यू 0.1 और 1.12 पे। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2440 एंड लास्ट टर्म विल बी k4 एंड दिस विल बिकम hf इंटू एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस k3। सो यहाँ पे अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्टेप साइज इंटू फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 0.2 कॉमा 1.24 पे 4 पे उसकी वैल्यू निकालनी है। सो दोनों को मेन इक्वेशन में, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2888। सो देयरफॉर रुंगे कुट्टा मेथड गिव्स 1/6 इंटू इट इज k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 2 टाइम्स k3 प्लस k4। ओके, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/6 टाइम्स, ये बन जाएगा 0.200 देन प्लस 0.4800, मैं डायरेक्टली मल्टीपल करके लिख रही हूँ, देन इट विल बिकम 0.4880 एंड लास्ट टर्म विल बी 0.2888। सो डायरेक्टली जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2428। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। सो हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड approximate value of y is, अब वो किसके होगा, y नॉट प्लस k, दैट इज y नॉट प्लस k। सो y नॉट हमारे पास कितना था 1 है, उसको k प्लस करना, k कितना है 0.2428। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2428। सो दिस इज द आंसर। सो ये हमने क्या निकाल दिया इसका आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो आर के मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू।